Hey class 6, good morning everyone. Today we are going to study more further about pronouns. In the last session we have already discussed the introduction of pronoun, and in this chapter we are going to study the 3 more points about pronoun, uses of pronoun. They are used in different numbers, they are used in different genders, and they are used in different cases, just like noun. So likewise in pronoun it is used in the 3 types. So the first one we will talk about the person. Okay, personal pronoun. In the personal pronoun we will discuss that there are three person. I have already told you the first person, second person and third person. Those who are in the first person, I and we, those who are generally considered as speaker, and the second person is you, and third person is about we are talking, like they, he, she, it. These are third person. First person, second person, third person we have already discussed. But they are used in different number and different cases. You can see there is a table in your book is given. Let me show you that table. In your book there is a table of the singular and the plural. First person, second person and third person. Okay, the first one, that is singular and plural. We will divide them in singular and plural, like I, me and mine. These are singular. And in plural, in the first form, we, us and us. In second person, you and yours. And in plural, you and yours. Class, listen it very carefully. You में एक आदमी भी हो सकता है, ढेर सारे आदमी भी हो सकते हैं. योर्स में एक सिंगल आदमी भी हो सकता है और ढेर सारे आदमी भी हो सकते हैं. ठीक है, यू का मतलब किसी एक से नहीं होता या यू का मतलब ढेर सारे से नहीं होता. वो डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस में आप उसका यूज कर रहे हो. ठीक है, तो सिंगुलर में दैट, ही, हिम, इज, शी, her, hers, it, and then in plural they, theirs, them. Okay, so you can see that these are all personal pronouns. फिर से सुन लो, ये जितने भी हैं ये सब personal pronoun है. फिर से सुन लो, I, me, mine, we, us, you, yours, yours, he, him, his, she, her, hers, it, they, theirs and them. इन सबको रट्टा कर लो, रट्टा मार लो, इसको एकदम रट लो अपने दिमाग में कि ये सभी
पता भी होगा कि ये सब प्रोनाउन है, ठीक है। अभी हम लोग आगे इनका यूजेस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आप लोगों की जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट वी विल सॉल्व इट, ओके। व्हाट इट इज, लेट्स टॉक। द फर्स्ट वन इज गिवन, चेंज द प्रोनाउंस इनटू देयर प्लूरल फॉर्म्स। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। You have to change the number of, नंबर जानते हो ना, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। जैसे आपने सिंगुलर का प्लूरल बनाया है ना, इसी तरीके से आप लोगों को प्लूरल बनाना है। उसमें जहाँ भी सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ है वहाँ पे आपको प्लूरल प्रोनाउन बनाना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज गिवन लाइक, सेकंड वन वी आर गोइंग टू सॉल्व लाइक रोहित gave me some flour. Okay. So class, where is the pronoun in this sentence? Mommy. Very good. So we have to change it to its number. So one, what we will change it? We will change it into like this. Rohit gave what? मी का प्लूरल क्या होगा? Us some flowers. Very good. Okay. Next is given, send the letters to him. So what we will change? Very good. So it will be to them. Very good. Okay. The third sentence is, the teacher class mute yourself, I said. What is happening, class? If I have asked you to speak, it doesn't mean that every time you will open your speaker. The teacher was talking to me. So it will be changed into yes. Okay. Now mute yourself and listen to me carefully. This was the fourth one. Okay. Now the fifth one is, again me is given, it will be changed into us. Then sixth one is given, may I come in. So it will be changed into we. Mommy. Yes, dear. Next. Again someone is speaking. I have warned you 3 times. Next time I will just make you get out from this class. This is the last time I am giving you the warning. Next time I won't give the warning. I will just you to let out from this class. Okay, next one is, mother has asked you to visit the school. Okay, in this one you will be changed into you, because you is plural and singular both. Okay. Okay. Eighth one is, you can come along
sentence, in this sentence also you is given. I have told you you is singular and plural both. That's why you will remain singular. Okay. So class, let me erase it and we will start the next kind of pronoun. We have already discussed in the last session that there are 10 types of pronouns. Okay. Next one, the cases is given class. Person is given and cases is given. Okay. Next one, said to be subjective case, possessive case and objective case. The first sentence is, you are my friend. First see the example, you will be able to understand. Second example is, the house is mine. Okay. And the third example is, he plays with them. In the three sentences, three of them, first one you is used, then second mine is used, and third one them is used. But they all are in different cases. In the first one, you is used, the pronoun is used in nominative case. Nominative case मैंने क्या बताया था? जब कोई noun सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है. उसी तरह यहाँ पे जो प्रोनाउन यू दिया है ये भी किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है. आया समझ में? यहाँ पे क्या लिखा है? द हाउस इज माइन. यहाँ पर माइन वर्ड भले लास्ट में दिया हुआ है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ये एक पॉसेसिव केस है. पॉसेसिव केस मैंने क्या बताया था? जब कोई चीज किसी की होती है तो वो पॉसेसिव केस कहलाती है. क्या कहलाती है? पॉसेसिव केस. मतलब कोई चीज किसकी है, जैसे मैंने बताया था ना, राम्स लेटर. यहाँ पर लेटर किसका है? राम का है. तो यहाँ पर लेटर जो है वो पॉसेसिव फॉर्म में, किसमें है? पॉसेसिव केस में यूज हुआ है. उसी तरीके से यहाँ पे जो माइन है ये भी क्या है? पॉसेसिव केस है. क्योंकि ये क्या बता रहा है कि हाउस मेरा है, ये घर मेरा है. तो ये माइन किस केस में हो गया? आपका पॉसेसिव केस में. एंड ही प्लेज विद देम, ये आपका किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में. क्योंकि ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. अब मैं आप लोगों को और एक 3 एग्जांपल्स देती हूँ. पहला है जैसे he has gone. कौन चला गया? ही चला गया. तो ही क्या है आपका? सब्जेक्टिव केस. The bottle is yours. बॉटल किसका है? तुम्हारा है. तो यहाँ पे ये क्या आ गया? आपका पॉसेसिव केस हो गया. ठीक है. तीसरा एग्जाम्पल, she gave me money. इसमें जो मी है ये क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव केस है. क्यों? इसमें जो जो मी है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मी किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है. ऑल्दो मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लिसन टू मी, डोंट स्पीक, लिसन टू मी. Here money and me both are object. Money is direct object and me is indirect object. But me is object. That's why me is used as objective case. Class, did you understand about the case of pronoun? किसको समझ में नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया वो पूछिए. क्या नहीं समझ में आया आप पूछो. ऑब्जेक्टिव का मतलब जो ऑब्जेक्ट का तरफ वर्क करे, है ना. अब देखो जैसे ये पहला सेंटेंस जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, she lent me money. उसने मुझे पैसे दिए उधार में. ठीक है. उसने मुझे पैसे दिए उधार में. तो यहाँ पर मुझे वर्ड है, किसको दिया?
मुझे दिया, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ किस सब्जेक्ट के लिए, सी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सी किसमें है, सब्जेक्टिव केस में है, किस केस में, सब्जेक्टिव केस में है, और बी जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसको हम लोग एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल जो मेन लैंग्वेज वो आपकी एक्यूसेटिव केस है। हाँ बेटा, हाँ पॉसेसिव केस अभी बताती हूँ, पहले ये सब्जेक्टिव केस है, इसको हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस हो गया आपका, ये एक्यूसेटिव केस हो गया। अभी मैं बोलूं अब मैंने कहा द गार्डन इज आर्स, गार्डन हमारा है, यहाँ हमने क्या बोला, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपनी ओनरशिप के बारे में बता रहे हैं, कैसे, दैट की वो गार्डन हमारा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओनरशिप बता रहे हैं। जब किसी भी चीज के बारे में, ओनरशिप के बारे में किसी आदमी का नाम लेने के बजाय किसी प्रोनाउन का यूज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉसेसिव केस हो जाएगा। अभी इसी एग्जाम्पल की जगह हम यहाँ पर इज ऑफ की जगह लगा दे, इज ऑफ राकेश, हमने क्या लिख दिया, इज ऑफ राकेश, तो इसका मतलब ये गार्डन किसका हो गया, राकेश का हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने प्रोनाउन का यूज कर लिया तो ये क्या हो गया, आर्स, हमारा हो गया, ठीक है, और ये जो आर्स हमने लगा दिया ये आपका प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन कौन से केस में यूज हुआ है, पॉसेसिव केस में, कौन सा, पॉसेसिव। बच्चों तुम लोगों को पॉसेसिव का मतलब नहीं पता है इसलिए तुम लोग इतना कंफ्यूज हो रहा है, पहले तुम लोग ध्यान सुनो, पॉसेसिव का मतलब होता है संपत्ति, पॉसेसिव का क्या मतलब होता है, संपत्ति, कोई भी चीज किसी की संपत्ति में आती है तो वो उसका पोजेशन होती है, जैसे मेरे पास बैग है तो वो मेरी संपत्ति है, ये मेरा घर है तो ये मेरी संपत्ति है, ये कंप्यूटर मेरा है तो ये मेरी संपत्ति है, तो पोजेशन का मतलब होता है संपत्ति, और पोजेसिव मतलब अगर कोई चीज आपकी है, आप उसके बारे में, उसकी ओनरशिप के बारे में बता रहे हो तो वो पोजेसिव केस हो गया। क्लास डिड यू अंडरस्टैंड? यस मैम, यस मैम, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस मैम, आपको पहचान लोगे ना कि कौन सा पॉसेसिव केस है, कौन सा केस है? यस मैम, यस मैम। Let me give you some examples so you would be able to understand it more easily. Okay, next one is the person. Person division is given. Class, there is a table is given in your book. You have to make that table, and before that I have made one more table. Both of the table should be done in your copy, fair copy. Understood? Understood, class? Yes मैम। Okay. Yes। Exercise. Let's solve the exercise C. Exercise C is fill in the blanks with I or me. या तो आपको I fill करना है या me fill करना है. The first example is give dash something to eat dash am hungry. What will be I or me? In the first one, silent. Everyone silent. Mute yourself. Class silent, I said. I will tell you. Nobody will tell me. I know that how much you can understand. Listen to me. Give me, not I. Give I is not correct. Give me something to eat. I am hungry. Now, यहाँ पर जो me है ये आपका कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस है, और I जो यहाँ पर है ये सब्जेक्टिव केस है। नंबर 2, can you drop dash at the airport? So I and me. Why? Because in this one you can see that it is used as objective case.
and if it is asking about the objective case, so I is objective case or me is objective case, I is subjective case. जब भी सब्जेक्ट की बात आएगी I आएगा, ना कि मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है. नंबर थर्ड, that shall give you the book. Look class, I have removed Ankit Singh because he have unnecessarily opened his mic. The first initiative I have taken. Next time again if somebody has done like this, I will just remove you. I will not speak a single word. I will just remove you simply. But because it is intolerable for me to speak every time, to mute yourself. If you understand, that's okay. If you don't understand, that's also okay. Okay, next is you and dash will go together. Okay, in this one you have to fill nominative case. So what is nominative case? I is nominative case. Then fifth one, my parents dash dash. So यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव केस पूछ रहा है. ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, मी. सिक्स्थ वन इज dash have a pet monkey. तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, आई. Listen, just like this, the second exercise D and E is given. You have to do both of the exercises. Okay, this is your homework for today. D and E is your homework. Okay. Next one is possessive pronoun. Next kind of pronoun is possessive pronoun. Okay. Possessive pronoun is just like your person pronoun. Okay. Let me give you one example. All the possessive pronouns are the version of personal pronouns. Let me give you one example. Like if I talk about the first person, second person and third person. Okay. In the first person, what are the personal pronouns? I and we. Am I right, class? And the second person, you has come. And in the third person, he, she, it and they. ये सारे क्या हैं आपके फर्स्ट पर्सन के हैं, ये क्या है आपके सेकंड पर्सन के, और ये क्या है आपके थर्ड पर्सन. सही है ना बच्चों. अब इनके पॉसेसिव फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं. आई का हिंदी में क्या मतलब होता है, मैं का अगर हम पॉसेसिव मतलब अगर हम किसी ओनरशिप की बात करें, जैसे मैं कहूँ मैं टीचर हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास एक पर्स है, तो मैं का क्या होता है, मेरा. हम का क्या होता है, हमारा. तुम का क्या होता है, तुम्हारा. वह का क्या होता है, उसका. लड़की के लिए वह का क्या होगा, उसका. और दे के लिए उनका. वे के लिए क्या जाएगा, उनका. जैसे हिंदी में होता है ना, वैसे ही इंग्लिश में भी होता है. आ रही है बात समझ में सबको? आई है कि नहीं? अब रिप्लाई नहीं करेगा. ध्यान से सुनो. आई का मतलब क्या है, आई का मतलब होता है मैं. अब इसका मेरा वाला क्या होगा वर्जन, माइन. अब तुम लोग कहोगे कि मैं माई भी तो होता है, लेकिन माई एडजेक्टिव होता है. फिर से सुन लो, दोबारा बता रही हूँ.
कभी भी ये गलती मत करना। माय एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। माय माइन जैसा नहीं होता। माइन एक प्रोनाउन है और माय एक एडजेक्टिव है। इसी तरह बहुत एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे। दूसरा है आपका वी। वी का मतलब होता है हम, और इसका आपका वर्जन क्या हो जाएगा, हमारा। तो वी का क्या हो जाएगा, अस। एम आई राइट क्लास? अब कहोगे मैम आवर भी तो हमारा होता है, लेकिन आवर जो है वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका यू। यू का आपका क्या होता है, योर्स, तुम्हारा। अब कहोगे कि मैम योर भी तो होता है। योर क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है। इसी तरह ही का क्या होता है, हिज, ठीक है। और शी का क्या होता है, हर्ष, देख लो। और इट का क्या होता है, इट ही होता है। इट का इट ही होता है, इसीलिए आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और दे का क्या होता है, देयर्स। अब कहोगे मैम हिज भी तो होता है, लेकिन हिज आपका एडजेक्टिव भी है, पजेसिव प्रोनाउन भी है, याद रखना। हिज में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन भी यूज हो सकता है, लेकिन तुम लोगों को इसका अंतर समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका हर। हर है ना आपका, ये आपका प्रोनाउन है, लेकिन हर आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अब कह रहे होगे कि मैम एडजेक्टिव क्यों बता रही है, प्रोनाउन ही बताती तो इतना ही काफी था। इट, सो एक वर्ड होता है आपका इट्स, ये भी आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और देयर है ना, दे है ना, उसका जो देयर है ना, देयर, देयर आपका क्या होता है, देयर से। यहाँ पे देयर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एस नहीं लगा रही हूँ, फिर से देख लो, मैं यहाँ पर एस नहीं लगा रही हूँ। और अगर एस नहीं लगा है तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ये आपका एडजेक्टिव है। अब कहोगे कि मैम आप हम लोगों का एडजेक्टिव क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे यहाँ पर माय लिखा है ना, जब भी माय आएगा बच्चों तो उसके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे मैं लिखूंगी माय, उसके साथ लिखूंगी कार। माय लिखूंगी, उसके साथ लिखूंगी पेंसिल, ठीक है। ऐसे ही आर लिखा है, आर कभी भी अकेला नहीं आएगा। आर जब भी आएगा किसी नाउन के साथ आएगा। आर कंट्री, आर होम। इसी तरह से योर है ना, योर कभी अकेला नहीं आएगा। योर आएगा तो योर के साथ रहेगा पेंसिल। इसी तरह हिज जब भी आएगा एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। अभी तो ये प्रोनाउन की तरह यूज होगा, तब तो इसमें कोई भी नाउन नहीं होगा। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा होगा तो हिज के आगे क्या लगा होगा, हिज के साथ लगा होगा हाउस, हिज के साथ लगा होगा कोई ना कोई नाउन। हर्ष जब अकेला आएगा, जब इसमें एस नहीं लगा होगा, तो ये किसी न किसी नाउन के साथ आएगा, तब वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। इट्स जब भी आएगा किसी नाउन के साथ आएगा। देयर जब भी आएगा किसी नाउन के साथ आएगा। क्लास ये दोनों में अंतर समझ में आया? जब इन सब में एस लग जा रहा है तो ये प्रोनाउन बन जा रहे हैं, और जब एस नहीं लग रहा है तो ये क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? हाँ, वेरी गुड। और ये तुम लोग कह रहे हो कि मैम ये जो आपने अभी हर, माय और ये सब बताया, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। किस टाइप के एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव्स। जैसे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वैसे ही पजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है। अभी आप लोग की बुक में पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। और उसकी एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप लोग खुद पहले सॉल्व करना, और कल मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। इट इज ऑल्सो योर होमवर्क फॉर प्रैक्टिस, ओके, बट यू डोंट हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी। Beta, in your fair copy, class, can you listen to me? Yes, ma'am.